Operation on real numbers. Today we will do operation on real numbers. Yesterday we have studied about the representation of rational numbers on the number line in their decimal form. Rational number, irrational number, their definitions already we have studied. Now we will do their operations. Like rational numbers, irrational number also satisfy commutative property, associative property and distributive property. But like rational numbers, it is not always true that if we add two irrational numbers we get always irrational. If we multiply two irrational numbers we always get irrational. It is not always true. Now we will do some operations. Suppose we have a rational number 2. 2 is rational and square root 3 it is irrational. It is rational, it is irrational. And irrational, what is the definition of irrational? They have non-terminating and non-repeating decimal expansion, right? But if we add 2 and square root 3, 2 plus square root 3, what will be it? It will be rational or irrational? This is the question. It is always irrational. It is always irrational because if square root 3 has non-terminating and non-repeating decimal expansion, so the 2 plus root 3 also. 2 plus root 3 has also non-terminating and non-repeating decimal expansion, so it is also irrational. If we like same operation is in minus, 2 minus root 3 is also irrational. If we multiply 2 and root 3, if we multiply 2 and root 3, it is also irrational. They are also irrational number. It is also irrational. If we divide square root 3 by 2, it is again irrational number. These are also irrational numbers. Now we will do some operations. For example, 2 is rational number, square root 2 is irrational. So what about 2 square root 2? It is also irrational. Now suppose we have to add 2 square root 2 and 3 square root 2. Both are irrational. Both are irrational and we have to add them. We have to add them. 2 square root 2 plus 3 square root 2. What will be the answer? How we will add? We will add their rational part 2 and 3. 2 plus 3 is 5. 5 square root 2. You can read it as 2 times square root 2, 3 times square root 2. So how many times? कितनी बार हो गया ये? 5 square root 2, right? और इसको इस तरह से भी कर सकते हो. Take square root 2 common. So हमारे पास क्या बचेगा? 2 plus 3. तो 2 plus 3 कितना होता है? 5. रैशनल पार्ट को हम हमेशा आगे लिखते हैं, इरेशनल पार्ट को पीछे लिखना है. तो it will be 5 square root 2. और directly you can write it as. डायरेक्ट भी हम इस तरह से लिख सकते हैं. अब सपोज हमें सब्ट्रैक्ट करना है. Subtract 3 square root 5 from square root 5. 3 square root 5 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से? square root 5 में से. So square root 5 minus 3 square root 5. Now यहाँ कोई रैशनल नंबर नहीं है. Suppose it is 1. Suppose here it is 1. So 1 times square root 5 minus 3 square root 5. irrational पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो. 1 minus 3 कितना होता है? minus 2 square root 5. इस तरह से हम माइनस करेंगे. Now suppose you have subtract 2 square root 3 from 3 square root 5. 2 square root 3 को हमें 3 square root 5 में से subtract करना है. So 3 square root 5 minus 2 square root 3. अब जिस तरह से यहाँ मैंने बताया था तुम लोगों को कि कॉमन निकाल लिया हमने. स्क्वायर रूट 2 को हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बचा? 2 plus 3 और ऐड हो गया. क्या यहाँ पे कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है. दो नंबर्स को हम, दो इररेशनल नंबर्स को हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनका इररेशनल पार्ट क्या है? सेम है. वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट दीज अनलाइक इररेशनल नंबर्स. तो आंसर इसमें यही होगा 3 square root 5 minus 2 square root 3. Suppose we have add 2 square root 2 plus 3 square root 3 and 2 square root 5 minus 3 square root 2. इसको ऐड करना है. ठीक, तो अब हम कैसे करेंगे? 2 square root, it is 2 square root 2 plus 3 square root 3. ऐड करना है 2 square root 5 minus 3 square root 2. किसको ऐड कर सकते हैं हम? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट
ये सेम है यहाँ पर ये वाला पार्ट। तो 2 माइनस 3 इनका रैशनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 स्क्वायर रूट 2। बाकी ये 3 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज, और ये 2 स्क्वायर रूट 5 भी हमारा क्या आ जाएगा एज इट इज, राइट। सेम ऑपरेशंस हमें मल्टीप्लीकेशंस के लिए करने हैं। मल्टीप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव टू मल्टीप्लाई, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसमें एक्चुअली हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉलो करेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 रेज टू दी पावर 1/2। और स्क्वायर रूट 3 का मतलब भी क्या हो गया 3 रेज टू दी पावर 1/2, राइट। अब मल्टीप्लाई हमें करना है। मल्टीप्लाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला पार्ट सेम है, बेस डिफरेंट है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हमने लॉ पढ़ा है 2 into 3 raised to the power 1/2। we can write it as like this, right? then 2 into 3 कितना हो गया 6 raised to the power 1/2, और 6 raised to the power 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 6। तो हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर हमें स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 into 3 कितना हो जाएगा 6। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेस पर ये प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 को अब इससे भी करना है मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या है, रैशनल पार्ट को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल पार्ट को इरेशनल से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 6, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 को किया तो कितना हो गया स्क्वायर रूट 6, राइट। रैशनल को रैशनल से कर दिया, इरेशनल को इरेशनल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इधर भी ऐसे ही करना है 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से किया तो स्क्वायर रूट 50, राइट। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बेस पे हो गया। इसके अलावा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बेस पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी, राइट। तो a माइनस बी a प्लस बी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर बाय दिस आइडेंटिटी, करेक्ट। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इसका क्या मतलब है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर मींस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, करेक्ट। स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर का क्या मतलब है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, राइट। तो स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 कितना हो गया स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 कितना हो गया स्क्वायर रूट 4, करेक्ट। अब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो आंसर कितना होगा 3 माइनस 2 1। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे स्क्वायर रूट 3, देखो 3 का स्क्वायर रूट 3 का क्या मतलब है 3 रेज टू दी पावर 1/2, फिर बाहर हम लगा रहे हैं स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 का मतलब है 2 रेज टू दी पावर 1/2, बाहर हम लगा रहे हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, पावर 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 3, यहाँ पर भी ये कैंसिल 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, मीन्स हम डायरेक्टली वी कैन राइट स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर एज 3, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, ठीक। अब सपोज हमें दिया है स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमने पढ़ी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करो स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर, अभी मैंने बताया जैसे यहाँ स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर
तो ये हमने सिंप्लीफाई किया तो स्क्वायर रूट 9 आ रहा था, तो मैंने कहा था इसको डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करो, स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 2, स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट 14, और ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 14। अब ये रैशनल नंबर है कंप्लीट, ये इरेशनल है, ये कंप्लीट इरेशनल ही माना जाएगा, बट वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 9, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो आवर आंसर विल बी 9 माइनस 2 स्क्वायर रूट 14। Next topic is rationalization. Rationalization means to make an irrational number rational. To make an irrational number rational. For example, suppose we have square root 5. It is irrational and we want to make it rational. We have to convert this irrational number into rational number. That is called rationalization. किसी irrational number को rational number में बदल देना क्या कहलाता है? rationalization. अब square root 5 irrational है, इसको rational बनाना है, तो इसको हम कैसे rational बना सकते हैं? We will multiply it by square root 5. सेम नंबर से स्क्वायर रूट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 25, और स्क्वायर रूट 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? रेज टू द पावर 1/2, तो ये कैंसल, ये हमारे पास क्या बन गया 5। तो ये जो इरैशनल नंबर था इसको हमने सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसमें बदल दिया? रैशनल नंबर में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। अब ये मींस अगर स्क्वायर रूट 2 है तो इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट 2 से ही करना पड़ेगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। अब सपोज हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको हमें, अब ये इरैशनल नंबर है और इसको रैशनल बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल नंबर बन जाए? तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 था, साइन चेंज कर देना है, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस से। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? ताकि हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी बन जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी ताकि यहाँ पर अप्लाई हो जाए। तो देखो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लगाओ आइडेंटिटी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया? 1। अब ये इरेशनल नंबर था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? रैशनल में। अगर हमारे पास होता स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको रैशनल बनाने के लिए? स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 से। माइनस है तो प्लस ले लेना है, करेक्ट, ताकि आइडेंटिटी हमारी लग जाए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 5, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2, ये क्या बन गया हमारा? रैशनल नंबर। तो ये है रैशनलाइजेशन, हाउ टू डू रैशनलाइजेशन। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मीन जो ये डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है इसको रैशनल बनाना है। अभी बताया था किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको रैशनल बनाने के लिए? सेम इसी नंबर से, यानी कि स्क्वायर रूट 2 से। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट 2 से हमें नीचे तो करना ही है मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। तो स्क्वायर रूट 2 को 1 से करो, स्क्वायर रूट 2, और नीचे स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, अगेन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 दैट इज अपॉन में 2। तो क्वेश्चन क्या था? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था। अब डिनोमिनेटर में पहले क्या था? स्क्वायर रूट 2 इरेशनल था, अब क्या आ गया हमारे पास? 2 रैशनल आ गया। न्यूमिनेटर हमारे पास इरेशनल हो गया, लेकिन डिनोमिनेटर क्या बन गया है? रैशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। For example, one more example we will take. Suppose we have 1 upon square root 3 minus square root 2. ये
क्वेश्चन यही है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। क्या बताया था, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। माइनस है तो यहाँ पे क्या ले लेना है, प्लस ले लेना है। डिनोमिनेटर में किया है मल्टीप्लाई, तो न्यूमिनेटर में भी करेंगे। वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 1। Now 1 is a rational number. This is the rationalization of denominator.